Okay, friends. So, in this series of your PGT, we are progressing our lecture, and in this lecture, we have history. We have take a look of detailed study of Shakespeare. Okay, in detail means not you have to study his all works. Okay, because you know, and if you analysis of our previous year question paper of TGT or PGT, uh, one or two questions, asked each year or his minor plays, and the bunch of questions find you can find from his major plays. Okay, so not we have to focus his minor plays, but we have to focus his major plays. Okay, in detail. Okay, major plays in detail. Suppose that you have to study tragedy, major comedies, tragedies and comedies, and some of history's plays. In history's plays we will cover in question answer form. Okay, question answer form. And in this major part of histories और इन द हिस्ट्री के संबंध में हम लोग जो है हिस्ट्री के अगर हिस्ट्री का हम स्टडी करेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो पूछे हुए वो प्रश्न को, और जो इम्पोर्टेंट नेट जे आर एफ में जो क्वेश्चन पूछे गए मैं उसमें से कवर करूँगा। और ये जो सारा मैटर है ये सब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो पूछे गए हैं उनके अकॉर्डिंग ये सिलेबस तैयार होगा और उसी में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो मेजर ट्रेजेडी में से जैसे आपको पता ही है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। ठीक, इसी कॉमेडी में मिडसमर नाइट ड्रीम बहुत इम्पोर्टेंट है, एज यू लाइक इट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, रोमन प्लेज में आपका हो गया है जूलियस सीजर हो गया। ठीक, और रोमन प्लेज में आपका यू हैव जूलियस सीजर हो गया, और कौन सा है, और एक और है एंटोनी क्लियोपाट्रा। If you analyze the previous year question paper and find the questions of Antonio Cleopatra, here the exam committee always asked quotations from here. Okay, only quotations, no, and so we have to focus characters, important quotations with meaning. Okay, important scenes, act, etc. Okay, बस we have to इम्पोर्टेंट कोटेशंस हो गया, इम्पोर्टेंट सीन्स एक्ट हो गया, कैरेक्टर्स हो गया, प्रोलॉग इन प्ले एंड एपीलॉग इन द प्ले ना, जैसे एज यू लाइक इट, ए प्रोलॉग और एंड विथ एपीलॉग। ओके, we will talk other works of Shakespeare in which he include prologue and epilogue, and what others features of his plays we have to see in setting. Okay, setting we have to observe. Okay, each place setting you have to must know. Okay, setting you have to must know, and setting उसके बाद हो गया आपका थीम,
थीम भी होता है, प्लॉट, ओके, फॉलिंग एक्शन, राइजिंग एक्शन ना, ये सब को ध्यान में रख के कैरेक्टर हो गए, इम्पोर्टेंट कोटेशंस हो गए, इम्पोर्टेंट सीन्स हो गए, ऐसे मतलब यही सब पढ़ना है हमें. सपोज दैट वी हैव टू पिक, let's look up, you have to Hamlet. So first of all you have to study Hamlet like his क्या बोलते हैं उसको, okay, so in Hamlet first we have noticed is published, okay, 1603 and अगर हम इसकी सेटिंग की बात करें, okay, इसकी हम सेटिंग की बात करें तो ये Denmark है. This is only for example, okay, not I am covering all of Hamlet, means I have given you the idea to how to you cover any plays of Shakespeare or other any writers you are going to study. So keep in your mind that you have to study like this, okay. So I am giving you ideas, okay. So first of all you have to learn publication date, the other one is setting, and genre. You have to genre, and you can say genre means you know very well this is tragedy, okay. And the major characters, okay, characters you have major and minor both, okay, major and minor both characters मीन्स. देखिए इम्पॉर्टेंट प्लेस के तो आपको मेजर और माइनर दोनों करेक्टर, बहुत बार एग्जामिनर ने ऐसे क्वेश्चन आज पूछे हैं जो मतलब कि उस वजह से जैसे फूल्स हैं, जैसे इसके फूल्स जो है पूछे जाते हैं, बहुत सारे से पूछे, ट्रिंकुलो हो गया और बहुत सारे हैं वो नहीं अब नहीं उसको छोड़ देते हैं. तो आपको मेजर और माइनर दोनों करेक्टर याद करना है. सपोज दैट आपने जो है फ्रांसिस्को, आई थिंक how many of you know about Francisco ना, Francisco is a minor character, okay. Cornelius है. अब आप कहेंगे कि तो कहीं पूछा ही नहीं है. अरे नहीं पूछा है, बट यू हैव टू लर्न. पूछ लिया तो क्या करेंगे, यू हैव टू लर्न, ओके. 14 brass एंड हाँ मेजर में देख लो, हैमलेट, क्लॉडियस ना, पोलोनियस, लेआर्टीज, होरेशियो ना, गर्ट्रूड. एंड तो माइनर इस ये तो ये इसको पता है, एग्जामिनर जानता है कि ये जो है जो मेजर कैरेक्टर्स हैं, ये जो लर्नर है वो जानता है, जो कंपटीटर है वो अच्छे से जानता है, ओके. सो वो जो क्या उसकी वो जो स्कल था ग्रेव डिगर का, वो किसका था, यॉरिक का. तो ऐसे ऐसी चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक. अगर आप फिर मैंने क्या बताया आपको, 2-3 चीज़ें आपको पढ़ते गए. एक पब्लिकेशन हो गया, द सेकेंड वन इज़ आपका जो है सेटिंग, एंड द थर्ड वन इज़ जॉनरा, एंड फोर्थ वन इज़ कैरेक्टर, एंड द फिफ्थ वन इज़ कैरेक्टर इज मेजर माइनर एंड प्लॉट, ओके. 6 प्लॉट. and in this Hamlet you so plot you have देखो plot may be 1 2 3 4 maybe 4 plot you have to keep in mind. Suppose that in Hamlet you have the ghost of the king of Denmark tells his son Hamlet to revenge his murder by killing his uncle, okay ना, his uncle. So यार ये प्लॉट, ऐसे ऐसे प्लॉट आपको. अभी अगर हम इसकी क्लाइमेक्स की बात करें, ठीक, क्लाइमेक्स में अगर देख लो तो जब कैमलेक्स वो सीन होता है ना, जब हैमलेट जो है पोलिनियस को मार देता है, जब बेड चैम्बर में वो ना, व्हेन ही गॉन टू मीट हिज मदर गर्ट्रूड in her bed chamber, then Polonius secretly listening his hearing his talking, okay, उसकी बातों को सुन रहा था. तो तब
धोखे में पोलेनियस को उसने स्टैप कर दिया। तो दिस इज ए क्लाइमेक्स सीन। ओके, तो वाइल्ड एक्शन ब्रिंग्स हिमसेल्फ इनटू द अनअवॉइडेबल कॉन्फ्लिक्ट विद द किंग। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसको जो है हमें जो है ऐसे ऐसे पढ़ना है। ठीक, लेट्स लुक अदर एग्जांपल ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। सपोज दैट ये मैंने आपको ये जो है एक ट्रेजेडी का बताया। चलो अब मैं कॉमेडी का बताता हूँ आपको। ठीक, मैं लेता हूँ ए मिडसमर नाइट ड्रीम। ओके, हियर द अनदर वन एग्जांपल ऑफ मिडसमर, बहुत पूछता है इससे, मिडसमर नाइट ड्रीम, 12th नाइट है। ठीक, तो मैं मिडसमर नाइट ड्रीम लेता हूँ। ओके, अब भाई मिडसमर नाइट ड्रीम जो है, अब इसका सबसे पहले हम पब्लिकेशन अगर देखेंगे तो ये 1595 टू 1596 है, पब्लिकेशन डेट हो गया। ये मैं ऐसे मतलब ओवरऑल इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको एग्ज़ाम में बैठने से पहले इतनी तो आपको मतलब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एंड इसकी सेटिंग जो है वो सेटिंग में बार बार कह रहा हूँ कि सेटिंग्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ओके। एंड स्टोरी बिगिंस विद द मैरिज प्लान ऑफ Theseus and Hippolyta. Okay, and subplot involves a conflict among Athenian lovers. तो अगर इसकी ओरिजिनल पब्लिश की बात करें तो हम 1600 है। ठीक, तो ये सारी बातें आपको जो है एकदम याद रखनी है। ऐसे ही इसका जो है प्लॉट, उसका राइजिंग एक्शन और सब ना, इसके मेजर कैरेक्टर्स सेटिंग हो गया। तो उसके बाद जो है आपको जो है इसके कैरेक्टर्स याद रखने हैं। कैरेक्टर्स में आपको बताया, कैरेक्टर्स में आपके जो है मेजर होंगे। और ये देखिए आपको सबके प्ले मिलेंगे, मेजर और माइनर। अगर आप डिकेंस को भी उठाएंगे, हार्डी को भी उठाएंगे, तो भी आपको ऐसे ही स्टडी करनी है। ओके, तो आपको इसमें जो है जैसे एक माइनर में स्नग है। ओके, एक रॉबिन पग गुड फेलो है, बहुत पूछा जाता है। और एक इंडियन चेंजलिंग है, जिसका नाम है इंडियन चेंजलिंग, क्योंकि अवार्ड ऑफ टाइटेनिया होता है। ठीक, इसका प्लॉट जो है, प्लॉट इसके कई सारे हैं। ठीक है, ओके, प्लॉट इसके कई सारे हैं, इसके 4-5 प्लॉट हैं। तो ऐसे ऐसे आपको करके इसको याद करना है। ओके, एंड हाँ, वन मोर थिंग, इफ़ you know very well English, okay, and so गूगल पे जाके आप स्पार्क नोट्स की वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं 7 मिनट 8 मिनट की ना, इन कॉमेडी इन मतलब कार्टून फॉर्म। ओके, कार्टून फॉर्म में बनाते हैं। आप उसको जाके वीडियो, उनकी वीडियो की देखते एक जो आपको एक ओवरऑल जो आपके दिमाग में एक आइडिया होगा वो डेवलप हो जाएगा, जिससे आपको जो है अगर इसके टेक्स्ट रीडिंग वगैरह, तो टेक्स्ट रीडिंग तो भाई आपको जो है पीएचडी नहीं करनी, तो टेक्स्ट रीडिंग तो मैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ इफ़ यू एबल सो यू कैन डू। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको जो है ऐसे पढ़ना है। ओके, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो ये एक मैंने जो है विलियम शेक्सपियर का बताया था आपको। ठीक, ऐसे ही मैं इस पे जब वीडियो बनाऊँगा अलग से। ठीक, तो ये हमारा पहला वीडियो था। तो मैंने इसमें आपको आइडिया बताया था कि आपको कैसे जो है शेक्सपियर की ट्रेजेडी को, सोनेट्स को कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, हर चीज़ में यही होता है। ओके, और बाद में मैं फिर इसमें कुछ और वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।